उसको बुला रंजीत साहब आपके हम है ना, हम हैं, हमारी आशीर्वाद चलो हमारा उंगली छोड़ के नमस्ते। अरे वाह, नए वाले बच्चे हैं कि पुराने वाले? Good morning, everyone. First of all, I would like to request everyone to please stand up for the Rashtriya Gan. जनमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. And now we will proceed with the formal welcome of our chief guest and other dignitaries with the traditional Kathaks and bouquet. To do the honor, I request Dr. Faizan, Dean Agriculture, to welcome our chief guest, Professor Saket Khushwa, Honorable Vice Chancellor, University of Ladakh, with the traditional Kathaks. Extending the warm welcome Extending the warm welcome to our other dignitaries with the traditional Kathaks and bouquet. I request Dr. Faizan to kindly provide the Kathaks. Registrar is now to look University of Ladakh. Dr. Mahdi, Principal Scientist, KVK Zanskar. Mr. Ali Raza, Chief Horticulture Officer, Kargil. Madam Nasreen Fatima, Program Coordinator, KVK Kargil. Dr. Mahbub Ali, in charge administrator, University of Ladakh Kargil campus. Thank you, sir. Okay, sir. Please. Ringchin. Now I would like to request Dr. Ringchin to kindly provide a Kathaks to Dr. Faizan Ahmed, Dean Agriculture Science. Yes. Thank you, sir. Good morning, everyone. Dr. Mansoor Ali, on behalf of School of Agriculture, Science and Technology, University of Ladakh, welcome to the inaugural event of first batch of BSc Honours Horticulture degree program. We are gathered here to celebrate a new beginning and mark a significant milestone. It's an honor to have you all join us. We extend a warm welcome to our esteemed chief guest, Professor Saket Khushwa, Honorable Vice Chancellor, University of Ladakh, Mr. Nawang Tunduk, Registrar, University of Ladakh, Dr. Muhammad Mehdi Akhon, Principal Scientist and Head KVK Zanskar, Mr. Ali Raza, Chief Horticulture Officer, District Kargil, Dr. Faizan Ahmed,
Dean School of Agriculture, Science and Technology, Dr. Nasreen Fatima, Program Coordinator, Krishi Vigyan Kendra Kargil, Dr. Mahboob Ali, In Charge Administrator, University of Ladakh, Kargil Campus. All other dignitaries, faculty members, staff and dear students, thank you for gracing us with your presence on this auspicious occasion. First of all, I would like to request Dr. Faizan Ahmed, Dean School of Agriculture, Science and Technology, to present the welcome speech. जैसा आप सब लोगों को पता है कि आज एक बहुत ही हिस्टोरिक इवेंट है यूटी लद्दाख के कंटेक्स्ट में कि हम अपना एक न्यू प्रोग्राम बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर फर्स्ट टाइम लॉन्च करने जा रहे हैं। इस मौके पे मुझे बेहद खुशी का एहसास हो रहा है कि हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर जिन्होंने ये विजन बहुत ही रिसेंटली देखा और उसको दिखा भी दिया कि जिस तरह से जो हम सोचते हैं उसको हम विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम करके भी दिखाते हैं। सबसे पहले मैं ये सिग्निफिकेंस इस प्रोग्राम की आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि क्यों हमने प्लान किस लिए किया गया कि बीएससी हॉर्टिकल्चर का जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम है वो कारगिल में और लेह में दोनों जगह शुरू किया जाए। सबसे बड़ी बात कि हमारी कारगिल की जो इकोनॉमी है बेसिकली हॉर्टिकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड करती है क्योंकि हमारी लैंड होल्डिंग्स बहुत ही स्मॉल है और बीसी रेशियो जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का एग्रीकल्चर सीरियल क्रॉप्स से बेटर होने की वजह से फ्यूचर को देखते हुए ये प्रोग्राम बहुत ही कम टाइम में शुरुआत की गई है और इसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने ऑनरेबल वाइस चांसलर सर का जिन्होंने बहुत ही शॉर्ट पीरियड में इस चीज़ को साबित करके दिखा दिया है। अब जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ है तो इसके साथ सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी इस चीज़ की हो जाती है कि हम एक बहुत ही रिमोट रीजन में रहते हैं और हमें आज की तारीख में जो कंपटीशन है वो इतना ज़्यादा है तो हमें अपने रेस्ट ऑफ द कंट्रीज से किसी भी मामले में पीछे नहीं रहना है। तो इसीलिए हमने जो ये कोर्स करिकुलम है इसको इस तरह से डिवाइस किया गया है। हमारे बहुत ही जो यंग प्रोफेशनल जो हमारी फैकल्टी है उन्होंने दिन रात मेहनत करके आपका जो कोर्स करिकुलम तैयार किया है। मुझे उम्मीद है कि आप इन 4 सालों में वो सब कुछ सीखेंगे जो बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया के हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट सीखेंगे। अब आजकल जो नई टेक्नोलॉजी का ज़माना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इन सब के कोर्सेज हमने इस तरह से डिवाइस किए हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को किसी भी फील्ड में पीछे नहीं रखने वाले हैं। इसके साथ साथ जो न्यू स्टूडेंट्स बीएससी एग्रीकल्चर के हैं सर मैं आपको इस फोरम से ये बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट बैच जो हमने लास्ट ईयर शुरू किया था उसका इतना अच्छा रिस्पांस मिला है कि एग्रीकल्चर में हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा और हमने अपनी सीट से ज़्यादा जो हमारी सीट थी उनसे ज़्यादा हमने एडमिशन लिए हैं। तो इससे पता लगता है कि हमने पिछले 1 साल में इतना अच्छा किया है कि पब्लिक में ये मैसेज गया है कि ये इंस्टीट्यूट जो यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख का पार्ट है एजुकेशन के मामले में किसी से भी पीछे नहीं है। अदरवाइज कारगिल के जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले अपने ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए स्कॉस्ट जम्मू और स्कॉस्ट कश्मीर जाते रहे हैं और वैसे भी हमारे इस रीजन की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है फिर भी जो रिस्पॉन्स बच्चों का रहा है वो काबिल तारीफ है। तो मैं इन सभी बच्चों को एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। लास्टली जो भी हमारे पास जब भी हम पायनियर होते हैं मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई शुरुआत करते हैं तो सबसे ज़्यादा हर्डल्स जो है वो फर्स्ट बैच ही फेस करता है मगर अचीवर की तरह हम देखें तो सबसे ज़्यादा अचीव भी फर्स्ट बैच ही करता है। तो इस बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो टॉर्च बियरर बनेंगे आगे आने वाले बच्चों के लिए और पायनियर भी। तो इसी के साथ मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहता हूँ कि मैं इतना प्रिविलेज्ड हूँ कि इंडिया की फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मेरा जन्म हुआ और मैंने वो चीज़ें बचपन से देखी हैं कि जब 1960 में एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे फादर भी उस यूनिवर्सिटी में फर्स्ट बैच में ही थे। तो उन्होंने क्या किया जब यूनिवर्सिटी को जब लैंड दी गई तो उस टाइम इतना डेवलपमेंट नहीं था, ये बात 1960 की है। तो जो तराई रीजन में अपनी फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंडिया की स्टैब्लिश हुई पंतनगर में तो पूरा जंगल था
तो आप सोचिए कि एम्प्लॉइज ने खुद, जो सैटरडे और संडे ऑफ होते थे सर, और उस दिन जंगल काटने में साइंटिस्ट से लेके सारा जितना भी पावर था, मैन फोर्स था, वो यूज किया जाता था। और शाम को 5 बजे के बाद एक जेल जैसी कंडीशन हो जाती थी, क्योंकि हमने नेचुरली फॉरेस्ट को काट के अपनी यूनिवर्सिटी के लिए लैंड बनानी थी। तो सर इतना वहाँ पे अटैक होते थे इसके टाइगर्स के। तो आज आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी कहाँ पहुँची हुई है। तो इसीलिए ये मैसेज है कि हो सकता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं हो, मगर टाइम के साथ हम उस जगह पे जरूर पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ा बहुत शेरो शायरी का हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर को भी शौक है और मुझे भी है, तो एक बस ये फर्स्ट बैच के लिए एक शेर सुनाना चाहता हूँ, उसके साथ मैं अपनी स्पीच खत्म करूंगा। ठोकरे खाते चलिए, पत्थर भी हटाते चलिए, आने वालों के लिए राह बनाते चलिए। थैंक यू वेरी मच। Now I would like to request Dr. Nasrin Fatima Kajo, Program Coordinator Krishi Vigyan Kendra Kargil, to a few thoughts on this occasion. Ma'am, please. Thank you, Dr. Mansoor. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को पता है, ये हम फार्मर्स के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होते तो इनफॉर्मली मैं बोलूँगी। सबसे पहले मैं सर आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सर। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर कि आपने इतना एफर्ट्स लगाया कि विद इन नो टाइम्स, आपके अभी साल भी नहीं हो गया सर, ये हॉर्टिकल्चर बेच यहाँ पे लॉन्च किया सर। शहजाद सर का तो ये नहीं सर, बाकी फैकल्टी मेंबर्स का तो ये एक ड्रीम था कि यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोलना, एग्रीकल्चर की पढ़ाई यहाँ पे होना। हम उस ज़माने में 2000 हमारा स्पेशल बेच था, जम्मू में हम पढ़े थे। जम्मू कितना मतलब अच्छा यूनिवर्सिटी है आज, तो उसमें हम पहला बेच था, हमें स्पेशल बेच, हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट पर स्पेशल बेच लिखा जाता था, जैसे कि सर ने बोला। उस टाइम हम 19 बेच में हम 19 ही बच्चे थे, तो आज सर बोल रहे कि 30 बच्चों ने 30 बच्चों ने यहाँ पे एडमिशन लिया है, तो ये बहुत मुबारक की बात है, खुशी की बात है। तो उम्मीद करते हैं, सर ने जैसे बोला हमने जंगल काट के यूनिवर्सिटी बनाया है, वैसे हमारा भी बेच था, हम शर्ट में बैठते थे, लेकिन आप लोगों को शर्ट में बैठने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर अच्छे खासे क्लासेस है, उसमें आप और आपको इतने अच्छे फैकल्टी मेंबर्स है, उनसे आप नॉलेज लेने की कोशिश करो। आप लोग बहुत खुशकिस्मत है, क्योंकि हम जाते थे जम्मू के एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टेम्परेट फ्रूट्स के हम पढ़ के आते थे, और यहाँ पर कुछ फायदा नहीं होता था। जैसे कि लाइक मेरा स्केप पर पीजी पीएचडी दोनों मेरा स्केप पर था, आलमंड स्केप और एप्पल स्केप पर। तो यहाँ पर आकर मुझे कुछ काम नहीं पड़ते, तो कोई मुझे सजेशन देते थे कि तुम वहाँ से इनोकुलम लेके आ जाओ, यहाँ पर डिजीज स्प्रेड करो ताकि तुझे कुछ काम मिले, क्योंकि वहाँ से पढ़कर यहाँ का कुछ नहीं था। यहाँ के कोल्ड के बारे में हम नहीं जानते थे, यहाँ के अदर डिजीज के बारे में हमें नहीं पता था, जो वहाँ से पढ़ के आने का ही हमें नुकसान होते थे। लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से यहाँ के एग्रीकल्चर को, यहाँ के हॉर्टिकल्चर को, यहाँ के क्लाइमेट को समझ के आप आगे बढ़ सकते हैं। हम कहते हैं कि बच्चों को स्किल में जाना है, बीएससी एग्रीकल्चर करना है, हॉर्टिकल्चर करना है, लेकिन जब हम वहाँ से स्किल होके आ जाते हैं तो यहाँ पर कुछ काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप यहीं इसी जगह में आप स्किल हो रहे हो, तो आपको आगे जाके जॉब की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते हैं, तो आप इसी स्किल में आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। Now I'm requesting Chief Horticulture Officer District Kargil, Raza Ali sir, for his address to our BSc Horticulture Honors Horticulture students. Raza sir, please. तो सबसे पहले मैं खित्ते लद्दाख के लिए और यहाँ पे बसने वाले जो आवाम है और बिलखुसूस जो है स्टूडेंट्स हैं जो मुख्तलिफ फील्ड में अपना प्रोग्राम, अपना करियर बनाना चाहते हैं, और बिलखुसूस जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में, शोबे में अगर कोई जाना चाहते थे, ख्वाहिश रखते थे, तो उन सब के लिए, आप सब के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही साथ ऑनरेबल आज के चीफ गेस्ट मोहतरम
वाइस चांसलर साहब का भी और डॉक्टर फैजान साहब का भी आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि शॉर्ट पीरियड में यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर का कोर्स जो है, डिग्री कोर्स जो है आपका यहाँ पे शुरू होने जा रहे हैं। ये तभी मुमकिन हुआ जब आप लोगों की कोशिश के वजह से ये मुमकिन हुआ। तो हम सब के लिए, लद्दाख वासियों के लिए, खासकर करगिल और लेह दोनों में जो ये प्रोग्राम शुरू हो गया है, खासकर बच्चों के लिए जो डिग्रियां हासिल करने चाहते थे डिफरेंट फील्ड में, तो आपके लिए आप ये मौका जो है आपके डोर स्टेप पर आप ये दस्तयाब हो गया है। तो इसलिए जो है आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हमारे सब के लिए, पूरा करगिल वालों के लिए एक इंतहाई खुशी का मौका है कि देश के बाकी जगहों की तरह यहाँ भी अभी टेक्निकल टाइम अगर देखा जो दूसरा कॉलेज खुल गई है, यानी तो यह तकरीबन आपकी हम सब ये सोचते हैं तब उस ऊपर चला गया है। हालांकि इतने कम समय में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की इतना बड़ा स्टेप है कि चार कॉलेज एक स्टेट के अंदर खोलना, वो भी प्रोफेशनल कॉलेज, ये तो ऑलमोस्ट अगर सोचा जाए तो ये तो नामुमकिन बराबर था। लेकिन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक लद्दाखियों के साथ एक अच्छी सिंपैथी होने की वजह से लद्दाखियों की इस एजुकेशन लेवल को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों के स्किल को आगे बढ़ाने के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान रहा है कि इतने कम समय में हमारे चार कॉलेज आपने देखने को मिल रहा है। और फॉर्चुनेटली आज हम खुशकिस्मती है कि ऐसे लेवल पे हमारी इस यूनिवर्सिटी को आज लीड करने के लिए एक ऐसा हस्ती हमारे पास आज मौजूद है जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। यानी खासकर वाइस चांसलर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी खुशकिस्मती है। डॉक्टर फॉर्चून सिर्फ इंडिया में नहीं, बाकी देश से बाहर भी उनको काम करने का मौका मिला और हम सबको इसका पूरा फायदा एक साल के अंदर तो बहुत मिला। और हम तो अभी तो एक साल तो हुआ भी ना, अभी 6 महीना हुआ और हमें उम्मीद है कि कमिंग आइंदा आने वाले में हमें इससे ज़्यादा कुछ देखने को मौका मिलेगा। To request Dr. Mahbub to please come on stage to share his thoughts. It is indeed a great moment for the university. Congratulations to Professor Sakit Kushwaha, the Honorable Vice Chancellor of the university, who is leading the program. आपका बहुत शुक्रिया सर। Now we are seeing the university is taking shape from all forms. इस साल सर ने हमारे कैंपस में 24 कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं और ये 2 कोर्सेज से हमें लग रहा है सर कि कंप्लीट नाउ वी हैव ओनली 2 कोर्सेज लेफ्ट। वन इज मेडिकल साइंसेज MBBS वाला एंड इंजीनियरिंग। तो हमें पूरी उम्मीद है फैजान सर को बहुत बहुत मुबारक ये कोर्स चलाने के लिए और हमें उम्मीद है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ये होगा, साबित होगा। और जब हम एडमिशन कर रहे थे सर तो हम रोज़ देखते थे कि कितने एडमिशन्स हुए हैं। तो among all the 4 campuses this campus was leading from the country. कि for 30 seats of agriculture 157 applicants आए थे। This shows the progress of this campus and that is because कि एक dedicated faculty led by a very good leader is leading and making the show. So आप लोग फैजान साहब को बहुत बहुत मुबारक सर इस प्रोग्रेस के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख को आप लोगों ने चुना अपने कोर्स के लिए और 4 साल हम उम्मीद करते हैं कि आपका बहुत अच्छा साल गुजरेगा। यहाँ पे आप बहुत कुछ सीखोगे। हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, हमारे पास जितने भी फैकल्टी मेम्बर्स हैं सारे डॉक्टर्स हैं, लर्नड है, एक्सपीरियंस्ड है। सो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, आप बहुत इंजॉय करेंगे इस कोर्स को। और फैजान सर यहाँ पे है तो मुझे लगता है कि आप बहुत एक बढ़िया कोर्स में आ गए हो। और यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आइंदा लोग आने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर लीजिए कि थिंक फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख बिफोर गोइंग आउटसाइड। सो थैंक यू सर, थैंक यू। We are very happy and delighted to be here, and I would like to congratulate first of all our Honorable Vice Chancellor and Dr. Faizan for introducing horticulture in Kargil. और ये BSc हॉर्टिकल्चर ऑनर्स हॉर्टिकल्चर जो है सिर्फ कारगिल में ही नहीं है, ये लेह में भी इंट्रोड्यूस किया गया है। और हमारे VC साहब का शुरू से ही एक सपना था एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस करना। एग्रीकल्चर तो हमने पिछले साल इंट्रोड्यूस किए थे। तो इमीडिएटली जब प्रोफेसर साकेत साहब जब यहाँ ज्वाइन किए थे, इन्होंने कहा था वाई ओनली एग्रीकल्चर, वी शुड ऑल्सो गो फॉर हॉर्टिकल्चर। तो
तो उसी को कहते हुए इस साल 2025 के एकेडमिक सेशन में ये बिल्कुल ही मुमकिन कर दिया कि आज हमारे पास बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में बहुत सारे बच्चे भी हैं, एडमिशन भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो हम और साथ साथ में मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आपके जो यहाँ पे जो लीडर हैं, हम बॉस नहीं कहेंगे, हम लीडर कहेंगे। लीडर ही इज़ वन हु लीड्स, आपको अच्छी तरह राह में वो दिखा के लीड करता है। आपके डॉक्टर फैज़ान जो यहाँ पे हैं, ही इज़ अ वेरी वेरी गुड डॉक्टर फैज़ान इज़ अ वेरी गुड, बहुत अच्छा एक साइंटिस्ट है, एक रिसर्चर है, और इनके लीडरशिप में हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत हाइट्स और अचीवमेंट्स आएंगे आगे। तो ये बहुत अच्छी तरह आपको लीड करेंगे, इनकी कैपेबिलिटीज़ और बहुत डायनेमिक है। तो जो भी ये कहेंगे, आपके जो अभी आपको लग रहा होगा शुरू में, आई थिंक डॉक्टर फैज़ान कह रहे थे कि आज के डेट पे आपके पास कुछ नहीं है, हमारे पास यहाँ पे मतलब एक छोटा सा मकान है, ये है वो है, लेकिन जैसे इन्होंने वो जो पंत यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम्पल दिया था, उसी तरह कुछ ही सालों में आपको बढ़ते हुए दिखेगा ये यूनिवर्सिटी। इट विल राइज फ्रॉम नथिंग टू समथिंग, ऐसा बोला। साथ ही मैं अपने ऑनरेबल वाइस चांसलर का बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। सर, थैंक यू फॉर योर विजन, और हम उम्मीद करते हैं आगे भी जाके एग्रीकल्चर साइंसेस में हम क्या और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और बच्चों के लिए क्या फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। जितने भी फैसिलिटीज़ दे सकते हैं हम यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की तरफ से अब बच्चों को ज़रूर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। और आपके जितने यहाँ पे टीचर्स हैं, उनका भी मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ। जितने आपके फैकल्टीज़ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, दे आर वेरी एक्सपर्टीज़, मतलब बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे रिसर्चर्स हैं, PhD किए हुए हैं। तो आपके पास इतने टैलेंटेड और डायनेमिक्स आपके फैकल्टी है, तो इनसे भी आप बहुत ही फ़ायदा लीजिए, बहुत अच्छे से सीखिए आप लोग सब। तो इसी के साथ मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, गर्मी भी है, तो आप सब लोगों को, बच्चों को ये इंकरेज करूँगा कि जब when you are starting something, there is a saying, start right, finish well। जब कुछ चीज़ स्टार्ट करना होता है उसको अच्छे से स्टार्ट करें, उसका फिनिशिंग जो होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। जब जैसे फॉर एग्जांपल हम घर बनाते हैं, जब उस पर फाउंडेशन डालते हैं, उस फाउंडेशन का सही तरीका होना चाहिए। तो उसके बाद जब आपका पूरा हो जाता है, फिनिशिंग जो होता है वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए। Exactly the same thing that replicates and implies in our life also, applies in our life also। कि जब हम कुछ चीज़ अच्छे से शुरुआत करते हैं और ऊपर वाले को याद करके मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क के लिए थॉमस एडिसन साहब कहते हैं हार्ड वर्क का सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आपको हार्ड वर्क करना है, साथ साथ में स्मार्ट रहना है, और जो भी चीज़ आप शुरुआत कर रहे हैं अच्छे से शुरुआत कीजिए और अच्छे से उसको ख़त्म कीजिए। थैंक यू वेरी मच। University of Ladakh to enlighten us with the novel thoughts to commence the UKG program. डॉक्टर मंसूर, थैंक यू डॉक्टर मंसूर। बैठे आप सब। थैंक यू डॉक्टर मंसूर। So my sincere greetings to all of you। Bismillah ar-Rahman ar-Rahim। Assalamu alaikum। Julie। And once again my sincere greetings to all of you। Thank you very much for organizing this program, Dr. Fazan। We are grateful to you। Why it is necessary, and but let me first follow the protocol। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले मैं नमस्कार करूंगा जो स्टेज पे लोग बैठे हैं। So my most sincere greetings to the London Registrar of our university, none other than Mr. Nawaz Tundub Sahab। We have the in charge of this agriculture school, Dr. Faizan Ahmed Sahab। We have the administrative in charge of our Kargil campus, Dr. Mehboob, you have just heard him। We have the London horticulture officer, Raja Sahab। नाम तो गलत सही बोला ना, बहुत सही बोला। फिर झंस्कार के बीके के साइंटिस्ट चीफ इंचार्ज हमारे मेहदी साहब, डॉक्टर फातिमा हु इज इंचार्ज ऑफ KVK of this campus, I mean KVK campus of Kargil। Ladies and gentlemen, we have students here, the newcomers and the old batch। We have people from London faculties, they are here, the technical people who are working in the lab, non-teaching fraternity, the media fellow, and then of course the entrepreneur here। उनका नाम मैं भूल गया हूँ, Dr. Abbas। Thank you very much।
for providing us such kind of beautiful flowers. ये आपके ही नर्सरी से हैं, तो थैंक यू बोलना चाहिए और ये हम सीखना भी चाहेंगे. So अब आते हैं हम अपनी बातों पे कि why we are here. First, we welcome all of you and thank you for choosing this particular campus as your dream destination. Thank you very much. बात करते हैं कि ये why this destination, why we should pursue study here. तो पहले तो agriculture is really, मैं भी agriculture का graduate हूँ. It's not that I'm not from the high rocket science. I'm a graduate of BSc Agriculture. I did MSc Agriculture. Then I did PhD in Agriculture Economics. My topic was sustainable development. Then I have worked for World Bank. Then I have worked for various state as well as central universities as a vice chancellor. But I'm a senior professor in Banaras Hindu University. And this university is about age of the university is 100 years. That university was created in 1916 by the Parliament Act number, I think 236, but exactly I cannot recall, but something of that nature. The institute from where I came, from where I got my degrees, it was that institute was opened in 1936 before independence. So we have to understand the importance of agriculture in life. First of all, this is the business concerning 100% population on this earth. ये दुनिया के जितने भी लोग हैं उससे कंसर्न सब्जेक्ट है. खाना सबको चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, रोटी सबको चाहिए. So agriculture has a very immense contribution in the lifestyle. लेकिन इशू ये है कि हम जो डिग्री परस्यू कर रहे हैं इसके बाद हम क्या करेंगे. पहले तो वो बच्चे बताएं, कोई एक बच्चा ये बताएगा कि why you have chosen this particular campus, one reason. तो कोई एक बोलेगा, आप विद्यार्थी हो, नया स्टूडेंट हो, आप खड़े हो जाओ. गुड, हम बोलना सीखेंगे ना. यहाँ खड़े हो जाओ. अब जोर से बताओ कि आपने इस कैंपस को क्यों चुना. यहाँ पे स्कोप अच्छा है, ये अपनी धरती है, अपनी धरती पे पौधे अच्छा जन्म लेते हैं ना, तो ये हमारी अपनी धरती है, हमारा अपना एनवायरनमेंट है, अपने मम्मी पापा के पास रहेंगे और ज्यादा सीखेंगे, है ना. ये कॉन्फिडेंस है. तो पहला आपका जवाब होगा कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है. आप बाहर जाओगे, मान लो आप पड़ोसी राज्य में भी चले गए, जम्मू कश्मीर में. मैडम पढ़े हैं, आप सब लोग उपनगर से पढ़े होंगे, हम सब बाहर से पढ़े. जब अपॉर्चुनिटी कम थी, when things were not that much available here, तो हम बाहर जाके पढ़े. लेकिन बाहर पढ़ने में जो मुझे इशू लगता है कि हम पीछे रह जाते हैं कहीं कहीं. जो उस स्टेट के लोग होते हैं वो अपने आप को, चूंकि दे आर सन ऑफ द सॉइल, डॉटर्स ऑफ द सॉइल, तो वो होल्ड करते हैं पावर. तो वो मालूम चला कि आगे की सीट पे बैठेंगे. आप बाहर से आए हो तो थोड़ा शर्माओगे, सकुचाओगे, फिर आपको बजट की प्रॉब्लम होगी, वैसे पैसे नहीं खर्च कर पाओगे, तो आप पीछे रहोगे, है ना. तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए आपको अपनी धरती पे रहना चाहिए, ये पहली बात है. ठीक है, बैठ जाइए. अब आप छोटी सी बिटिया है, खड़े जाओ. क्या नाम है? फातिमा मैडम. तो आप बताओ बेटा कि आपने ये हॉर्टिकल्चर चुना है. ओके, न्यू स्टूडेंट. तो हॉर्टिकल्चर क्यों चुना है आपने? ये अच्छा लगा, ये ईमानदार आंसर है. आई एम हैप्पी, अच्छा लगा. तो आपने साइंस क्यों नहीं पढ़ना सोचा, या डॉक्टर बनने की क्यों नहीं सोची? मुझे लगा कि हम ये अच्छा कर सकते हैं, ऐसा लगा होगा ना. ये हमारे लायक कोर्स है, हम इसमें अच्छा करेंगे, है ना. ओके, थैंक यू. आप इस बच्ची को दे दो. क्या नाम है बेटा आपका? खड़े हो जाओ. तनीस फातिमा. तनीस फातिमा मैडम, बताओ क्यों चुना ये सब्जेक्ट आपने? Why you chose this subject? इसमें मुझे इंटरेस्ट आया. इंटरेस्ट आया? क्यों? मुझे अच्छा लगा. अच्छा लगा, बहुत अच्छा. चलो, इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछते नए बच्चों से ना. गुड, ये दे दो. जानते हो, मैं एक बात बताऊं, आजकल एक फैशन है, एक ट्रेंड है जीवन में. सभी मम्मी पापा अपने बच्चों को अच्छा सक्सेसफुल डॉक्टर देखना चाहते हैं या अच्छा इंजीनियर देखना चाहते हैं, है ना. ये सब्जेक्ट बहुत चोजन सब्जेक्ट नहीं माना जाता है. बट यू विल बी वंडरिंग, माय फादर वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, सो टू से, बिकॉज ही वाज वर्किंग ऑन क्वाजी क्रिस्टलन फिजिक्स. लेकिन जब सब्जेक्ट चुनने की बात आई तो उनके 5 बच्चे हैं. वी आर 5 सिबलिंग्स. ठीक है,
3 बहनें हैं मेरी और 2 भाई हैं हम लोग। हमने किसी ने उनका फिजिक्स सब्जेक्ट नहीं लिया। क्यों? ये कि ये धारणा बनी है कि जो प्रोफेशन हमारे पापा मम्मी का है वहां लाइफ आसान होती है। नहीं, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो तो साइंस और इंजीनियरिंग इंटरेस्ट छोड़ के, मैं तो पीएमसी ग्रुप का विद्यार्थी हूँ। आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। दैट वाज माय चोजन सब्जेक्ट इन इंटरमीडिएट। बट पहली फेल्योर मेरी क्या हुई? व्हाट इज माय फर्स्ट फेल्योर? एवरी फेल्योर ब्रिंग्स अ ग्लोरी टू यू। ये पहले बच्चों को ध्यान देना है कि आज का हमारा फेल्योर एक लेसन देके जाता है कि हमारे में क्या कमी थी जिसकी वजह से हम फेल हुए। उस कमी को इम्प्रूव करने का एक तरीका मिलता है, ये हमें सोचना है। तो पहला फेल्योर मेरी जिंदगी का ये था कि जिस बच्चे को मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाई उस बच्चे के पहले अटेम्प्ट में इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। दैट वाज माय फर्स्ट फेल्योर। आई वाज शाई फॉर फ्यू डेज। कुछ दिनों तक मैं बड़ा दुखी था। मम्मी पापा से नजरें चुरा रहा था, ठीक है, समाज से नजरें चुरा। पीपल कैसे आपको देखते हैं? आपका अंकल, आंटी, रिश्तेदार, पड़ोसी सब देखेंगे कि अच्छा, आधे पब्लिक तो आपको जेलस भाव से देखती है और आधी पब्लिक हंसती है पीछे कि अच्छा हुआ कि देखो सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। आधी पब्लिक जेलस फील करती है कि अगर ये हो जाता तो हमसे आगे निकल जाता। तो मैं सबसे नजरें चुरा रहा था। आई वाज शाई, है ना। I was not able to face people. Even पड़ोसी से फेस नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने अपना एडमिशन कैंसिल कराया। I got admission in BSc Physics, Mathematics and Chemistry group. फिर मुझे लगा कि अगर ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है, I analyze myself. आपको अपनी एनालिसिस खुद करनी पड़ेगी। You have to analyze what to do. What are your capabilities? और जिस कैपेबिलिटी को हम लैक करते हैं, जो कैपेबिलिटी हमारे में स्लिम होती है, उसको हम ऐड ऑन करते हैं। ये समझ लो कि आप सारे बच्चे एक नॉर्मल प्रक्रिया की पार्ट हो। अभी भी छोटे बच्चे रहे होंगे कभी, है ना, 2.5-3 पाउंड वाले। तो एक प्योर बच्चे थे, फिर जैसा एनवायरनमेंट मिला वैसे ही आप ग्रो करने लगे। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं, बशर्ते आप उसके लिए तैयार हो। एवरी इशू जो आप अपने में ऑब्जर्व करते हो, इट कैन बी रिमूव्ड। ये मैंने महसूस किया। लेकिन मुझे ये लगा कि अगर फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री मेरा चोजन सब्जेक्ट नहीं है तो फिर मेरी कैपेबिलिटी क्या है? डू यू नो द प्रोफेशन ऑफ माय टाइटल? मेरी टाइटल है कुशवाहा, ठीक है। ये कम्युनिटी लार्जर इंडिया में खेती करने के लिए जानी जाती है। वी आर एक्चुअली वेजिटेबल फार्मर्स ग्रोअर, ठीक है। हमारी ये कम्युनिटी मालूम होना चाहिए आप सबको। लेकिन पिताजी नोबेल लॉरिएट की लाइन में थे। फिजिक्स का जो क्वाजी क्रिस्टल है उस पे नोबेल प्राइज 2014 में मिला, बट ही बिकेम वाइस चांसलर ऑफ 2 यूनिवर्सिटीज। सो उसकी रिसर्च खत्म हो गई, वो कर ही नहीं पाए, टाइम ही नहीं मिला। तो उस फैमिली में मैंने जन्म लिया, लेकिन एक्चुअल प्रोफेशन फैमिली का हमारा ये है। तो मुझे लगा कि यार अगर ये मेरे खून में है तो इसको तो मैं बहुत पॉलिश कर सकता हूँ। हाँ, ये बात लार्जर इंडिया में कोई आपसे बोलेगा नहीं। तो मैंने क्या किया कि एग्रीकल्चर में अपना ट्रांसफर करा लिया। दिस सब्जेक्ट वाज ऑलवेज कंसीडर, थोड़ा नीचे लोग देखते हैं ना। आप किसी को बताने में थोड़ा शर्माते हो ना, तो मुझे भी शर्म लगती होगी। इस बात पे मैं बात नहीं आऊंगा। अब मैं आता हूं कि मैं वीसी कैसे बना। जब मैं विदेश में 14 साल रह लिया, 14 ईयर्स, ये पीरियड 14 ईयर से आपको क्या याद आता है? इंडियन इपिक याद आती है, रामायण, वनवास हुआ। I could not get the job the way I wanted to get the job. तो मैंने कहा हम इसको छोड़ ही देते हैं, हमने कंट्री छोड़ दी। 14 ईयर्स मैंने अपना कैरियर बनाया। And which country I chose? I would have gone to US, I would have gone to Australia, I would have gone to New Zealand. लेकिन मैंने किस कंट्री को अपना डेस्टिनेशन बनाया और क्यों बनाया? वर्ल्ड बैंक ने मुझसे पूछा था तो मैंने कहा मैं अफ्रीका चला जाऊंगा। Why? अफ्रीका was looking at Indian people with high esteem. अमेरिका जाके मैं सेकेंडरी और थर्ड क्लास सिटीजन बनता। ग्रीन कार्ड होने के बाद भी मुझे हर उस व्यक्ति का मुंह देखना पड़ता जो उस कंट्री को बिलोंग करता है। तो मैंने उस कंट्री को चुना जिस कंट्री की नजर में इंडियन की ये एनालिसिस आपको आनी चाहिए। सो आई चोज नाइजीरिया एज माय डेस्टिनेशन।
And within few years, I grew to a different level. I became national scientist. Being Indian, तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? Why I'm telling you my career? Look at my career. Look at my analysis. I chose agriculture. I made my dreams in agriculture, and then before India was able to proffer the job to me, जॉब मुझे उस दिन मिल गया था जिस दिन मुझे वीजा ग्रांट हुआ, उस दिन इंडिया में मुझे जॉब मिल गया। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं क्राइम करूंगा अगर मैं विदेश नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने उनका वीजा लिया, उनका टिकट ले लिया। सो आई लेफ्ट द कंट्री। 14 इयर्स बाद 2006 में लौटा, एंड आई बिकेम प्रोफेसर टू दैट सीट which was vacated by my professor. BHU में प्रोफेसर बनना मुश्किल काम है ना फैजान साहब? और मैं BHU का स्टूडेंट हूँ। जिस टीचर ने मुझे PhD कराई थी, उसकी ये सीट वैकेंट थी। सुनो, मैं आपके लिए तो बोलूँगा कि अल्लाह कितना ध्यान रखता है अपने बंदों का, ये सोचने की बात है, या हमारे लिए हमारा भगवान कितना ध्यान रखता होगा। तो ये सीट जो वैकेंट हुई, मेरे प्रोफेसर, मैं उनका लास्ट स्टूडेंट था, उनके रिटायरमेंट से पहले का, और मेरे PhD खत्म होने के बाद भी साथ ही साथ उनका रिटायरमेंट हो गया। BHU में कंडीशन है कि आप प्रोफेसर बनने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट में आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए 10 साल का। बिना 10 साल के पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस के आप BHU में प्रोफेसर का फॉर्म नहीं भर सकते। अफ्रीका में मुझे क्या अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं ही पायनियर हो गया PG प्रोग्राम को स्टैब्लिश करने का, यानी कि ऊपर वाले ने मेरी डेस्टिनी को मेरे हिसाब से लिखना शुरू कर दिया। आई बिकेम द क्रिएटर ऑफ PG प्रोग्राम इन नाइजीरिया। तो मुझे एक्सपीरियंस भी मिला, क्रिएशन का भी क्रेडिट मिला, और जब मैं इंटरव्यू देने आया इंडिया में तो मुझे वो जॉब मिल गया। अब मैं अपने प्रोफेसर, और वो सीट खाली क्यों रही 14 साल? कभी सोचो ऊपर वाला कितना आपका ध्यान रखता है अगर आप कोई काम शिद्दत से करो। इसलिए आपको ये सीखना है यार कि शिद्दत से काम करने आना चाहिए, और जो भी करो इतना ही करो, ईमानदारी से करो। हम अभी उसकी भी बात करेंगे, वो जरूरी है। हो सकता है कि मेरा स्पीच थोड़ा लॉन्ग हो, लेकिन आपको इससे जीवन के बहुत सारे डायमेंशन समझने को मिलेंगे। यहाँ सिर्फ वेलकम करके आपको अपॉर्चुनिटी बता के नहीं छोड़ना है। कल आप एक अच्छे नागरिक कैसे बनो, हाउ टू बिकम ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, नॉट ओनली फॉर करगिल एंड लद्दाख, for your family also, for your village people also, for your community and for your country, and then at the larger level, आपके ग्लोब, ये जो धरती है, इसके लिए आपकी क्या ड्यूटीज है? अस्सलाम वालेकुम। तो आज इधर लद्दाख यूनिवर्सिटी में BSc एग्रीकल्चर का नया कोर्स BSc एग्रीकल्चर और BSc हॉर्टिकल्चर यहाँ पर कोर्स लॉन्च हुआ है, जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि हमें बाहर जाना नहीं पड़ता, जो हमारे घर के आसपास है, इसलिए हम बहुत थैंकफुल हैं लद्दाख यूनिवर्सिटी का। ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए कि उनको मतलब आउट ऑफ स्टेट नहीं जाना पड़ेगा, अपने स्टेट में ही उनको अवेलेबल ये हुआ है। तो ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चरल स्टूडेंट्स के लिए। तो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आई एम ए न्यू स्टूडेंट हियर, जस्ट enrolled in the stream BSc एग्रीकल्चर। आज मैं BSc हॉर्टिकल्चर के बारे में बताना चाहती हूँ, और आज यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ था हमारा फर्स्ट बैच का BSc हॉर्टिकल्चर का। यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, अभी हमारे कुछ ऑनरेबल गेस्ट्स आए थे, VC सर आए थे, और भी बहुत सारे गेस्ट्स आए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, और हमें मतलब इस कोर्स को करने के लिए हमें कहीं बाहर दूर नहीं जाना पड़ता। हमें जैसे बाकी बच्चे जम्मू जाते हैं, स्क्वाश कश्मीर जाते हैं, हमें वो सब फैसिलिटीज़ यहीं पे प्रोवाइड हो रही हैं, तो हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया ये कोर्स पूरा इस्टेब्लिश किया इतने कम टाइम पे। डॉक्टर फैज़ान सर ने इतनी इमेंस एफर्ट डाली उन्होंने इसको इस्टेब्लिश करने में। तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू फैज़ान सर, डॉक्टर फैज़ान सर, और बाकी एंड ऑल दी अदर फैकल्टी मेम्बर्स। I'm grateful to be here. I just got admitted, and I'm sincerely grateful for all the faculty members, especially Dr. Faizan sir. Thank you.